So hi there, let us start with the chapter of impression materials. So all those attending the class live, lecture recording start हो गई है. So whatever doubts you have, आप मुझे मैंने साइड में अपना iPad खोल रखा है. You can just text me on WhatsApp, जो हमारा ग्रुप है, and उसमें I'll just see to your doubts and I'll rectify them. This recording will be posted on YouTube just for consent purposes. ठीक है, चलो जी शुरू करते हैं. So if we are talking about impression materials, तो सबसे पहले तो the book which we are following is Phillips Southeast Asian edition. It's a very good book and I will always recommend you to read this book as much as possible. ठीक है, so Phillips में से ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं. Initially see for every chapter there are definitions given in Phillips in the beginning. You must read them, you must understand them, you must not rote learn them. Okay, रट्टा नहीं मारना. And then ask your doubts. You can ask your doubts to someone who is an expert in this subject. I'll mention the name. इनसे आप पूछ सकते हो. ठीक है. So let us continue. So when we are talking about impression materials, the first thing which comes in our mind is why are they required? अच्छा, फर्स्ट डाउट भी हमारे पास यही है कि सर वाई आर, एक मिनट, why do we need impression materials at all? See, देखो, आप अगर किसी रिलेशनशिप में हो और वो रिलेशनशिप में आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा है, तो आप चैट्स पढ़ने की कोशिश करते हो और उसके बाद यू हैव योर स्क्रीनशॉट्स विद यू, है ना? या फिर क्लास में ही इफ यू आर इन अ बैच एंड यहाँ पे कुछ बातचीत चल रही है विच इज स्लाइटली समथिंग जिसमें मैटर्स हो सकते हैं आगे, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेते हो. ठीक है, सो स्क्रीनशॉट इज लाइक योर प्रूफ एंड इम्प्रेशंस आर अ प्रूफ फॉर अ डेंटिस्ट. ठीक है जी. क्या होगा इफ यू सी अ पेशेंट एंड पेशेंट जो है वो सीधा बोल दे जी मेरे मुंह के अंदर तो ऐसा ही है, एंड आप ये वाली बात को लैब में भेज दो और लैब वाले बोले ऐसा क्या. ठीक है, सो ये चीज को डाउट को क्लियर करने के लिए वी नीड एन इम्प्रेशन हियर. सो दैट्स व्हाई इम्प्रेशन इज रिक्वायर्ड. जैसे रिलेशनशिप में स्क्रीनशॉट्स इंपॉर्टेंट है, वैसे ही डेंटिस्ट्री में इम्प्रेशन इंपॉर्टेंट है. यू कैन कीप इट लाइक दैट. सो व्हेन द पेशेंट इज देयर, you need to work on him or her, but there are some things known as lab work involved. Now lab work must be done in absence of patient. So to do this you need a replica of the patient. oral cavity है ना, oral cavity का replica चाहिए, yes or no? So ये replica को बनाने के लिए we require impressions so that we can pour them. We can say this as a negative likeness or copy in reverse. Negative likeness और copy in reverse हमारा impression होता है. For example, if I have this mobile phone with me, ठीक है, ये मोबाइल फोन iPhone 16 Pro 256 GB, ठीक है. तो व्हाट यू कैन डू इज आप इस आईफोन को रेप्लिकेट करने के लिए इसका एक इंप्रेशन ले सकते हो. तो जो मोल्ड आएगा हमारे पास में दैट इज नोन एज एन इंप्रेशन. नेगेटिव लाइकनेस, उसका नेगेटिव यानी उसका कॉपी रिवर्स में. सो देयर आर सर्टेन क्राइटेरियाज मेंशन्ड. देयर आर 7 क्राइटेरियाज मेंशन्ड इन फिलिप्स for an impression material to be a good impression material. Okay,
So the first one being that it must be sufficiently fluid to adapt to oral tissues. Fluid to adapt to oral tissues. इतना fluid होना चाहिए कि easily flow करके it adapts onto the oral tissues. But at the very same time, it must be viscous to be included in the tray. है ना? जिस ट्रे में हम इंप्रेशन ले रहे हैं, it must be capable enough that the impression material it just not merely flows away. It must hold itself up and it must be fluid at the same time. Able to transform. It must be able to transform into a rubbery or rigid solid in mouth in reasonable amount of time. Okay, now this must be less than 7 minutes as mentioned in Phillips. This is very important. ये एक MCQ में पूछा गया है in your AIPG examinations. Then coming on to the fourth point. I hope you are making notes. ठीक है, ये मैं ऐसे ही नहीं लिखवा रहा हूँ. Resistant to distortion or tearing. ठीक है, every word is important here. Resistant to distortion or tearing when removed from mouth. Okay, होगा क्या? Let us say that we have teeth like this. ठीक है, arbitrarily, and we make an impression out of it. Impression material यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा, सब जगह जाएगा. ओके, ये सब जगह जाएगा. एंड जब ये सब जगह जाएगा, whenever we will be removing it, see these areas जो interproximal areas हैं, they are very sensitive क्योंकि यहाँ पे impression material बहुत thin है. It might tear, और अगर ये tear हुआ तो हमारे पास इस एरिया का सही से रेप्लिकेशन नहीं आएगा. So that's why it must be resistant to tearing and distortion. तो of course वरना वो सेम नहीं आएगा आपका जो impression आएगा. It will not be a true copy. Fifth, it must be dimensionally stable. Long enough to allow one or more casts to be poured. अब इसका क्या मतलब है? हाँ, एक मिनट. अच्छा, पहले के 3 पॉइंट्स भी वैसे ही बताओ सर जैसे. ठीक है, एक मिनट. फ्लूइड टू टैप टू ओरल टिश्यूज. ठीक है, मान लो मेरे पास में आई हैव एन ओरल कैविटी विद मी जिसमें दांत प्रेजेंट है, रूगे प्रेजेंट है, मिड पैलेटाइन रैफे है, और हो सकता है यहाँ थोड़े मोरे और डिटेल्स है विच वी रिक्वायर. हमें सब चीज का रेप्लिका चाहिए. हम पेशेंट को कॉल करके बार बार नहीं बुला सकते. ठीक है, सो टू हैव दैट इन माइंड, अगर मैं बहुत ही थिक मटेरियल ले लूंगा, थिक मटेरियल इन द सेंस मान लो आपने क्ले ली. ठीक है, आपने क्ले लेकर के आईफोन के साथ में मेरे दबा दी, तो आपको ग्रॉस तो कॉपी मिल जाएगी, बट फाइन कॉपी जो इसके कवर के या कैमरा के साइड में होगी वो सब नहीं मिल पाएगी ना. सो इन ऑर्डर टू रिकॉर्ड द फाइनर डिटेल्स वी रिक्वायर द मटेरियल टू बी फ्लूइड. ठीक है, तो फ्लूइड होना बहुत ज्यादा जरूरी है. बट अगर ये ज्यादा फ्लूइड हो गया तो आप सोचो ना, मैंने मुंह के अंदर उसको मैं लगा दिया, वो फैल रहा है, कभी कभी गले में जा रहा है, कभी गैगिंग कर रहा है पेशेंट को, कभी मुंह पे लग गया, इधर गिर गया, उधर गिर गया, या फिर ट्रे में लोड करके एज वी आर प्लेसिंग इट इनसाइड मैंडिबल के लिए हमने ट्रे उल्टी करी मैंडिबल में प्लेस करने के लिए और सारा मटेरियल बाहर फ्लो कर गया. प्रॉब्लम है ना. सो इट मस्ट बी विस्कस एज वेल. मतलब एक ना तालमेल चलना चाहिए. क्या बोलते हैं कि कुंडली ऐसी मिलनी चाहिए, दोनों का तालमेल सही बैठे, तो फ्लूइड और विस्कस वाली चीज हो जाएगी. एंड इट मस्ट ट्रांसफॉर्म इनटू अ रबरी और रिजिड सॉलिड. मान लो फ्लूइड ही है या मान लो विस्कस ही है, इंप्रेशन रिकॉर्ड करते टाइम जैसी स्टेज में है वो फाइनल में वैसा रहा ही नहीं, वो उसी स्टेज में कंटिन्यूड. आप उसे निकालोगे, निकालते निकालते खिंचता चला जाएगा इंप्रेशन, या डिस्टॉर्ट हो जाएगा, बेकार हो जाएगा. सो इट मस्ट सेट, रबरी या रिजिड हो जाना चाहिए,
और एक टाइम पीरियड में हो जाना चाहिए ना, 7 मिनट के अंदर, क्योंकि 7 मिनट से ज्यादा में ये देखा गया रिसर्च में कि देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि पेशेंट ही कंफर्टेबल नहीं है इतना ज्यादा मुंह खोले रखने में 7 मिनट के लिए। नो, टीएमजे है, कुछ इंसान में बॉडी में ह्यूमन बॉडी है, एनाटमी है, कुछ नीड टू रिस्पेक्ट दैट। सेकेंडली, डेंटिस्ट के पास इतना टाइम नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट। मान लो आप एक बढ़िया प्रोस्टोडोंटिस्ट हो, है ना, एंड यू आर अ प्रोस्टोडोंटिस्ट जो कि मौलाना आजाद में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है। आपको पता है कि आप सुबह एक पेशेंट का इंप्रेशन ले रहे हो, बाहर वेटिंग एरिया में 8 पेशेंट गार्ड से लड़ रहे हैं कि डॉक्टर साहब ने तो हमें सुबह बुलाया था, अभी तक देखा क्यों नहीं है ना। हम इतना टाइम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वी नीड टू मेक एन इंप्रेशन सडनली, जल्दी से, बस 7 मिनट के अंदर ही हो जाना चाहिए। उससे ज्यादा चलेगा हमारा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो ये तरीका, ठीक, मैं ये जो भी बातें बोलता हूँ ना, इसको ऐसे मत लेना कि ज्यादा चौड़ा हो रहा है कुछ, एनीथिंग लाइक दैट। इट्स जस्ट फॉर द फैक्ट कि आपके दिमाग में ये सब सेटल हो जाए, ठीक है, और कुछ गोल नहीं है। नाउ कमिंग ऑन टू द 6th पॉइंट, बायोकम्पैटिबल होना चाहिए आपका इंप्रेशन मटेरियल। इट मस्ट बी बायोकम्पैटिबल। इफ इट इज नॉट एट ऑल बायोकम्पैटिबल तो कोई सेंस ही नहीं है ना, पता चला मुंह के अंदर इंप्रेशन लेने बैठे और उसको एलर्जी हो गई, अल्सर हो गए। इट मस्ट बी कॉस्ट इफेक्टिव, भाई बहुत ज़रूरी है, स्पेशली फॉर इंडियन मार्केट, या अगर आप एक ऐसे कॉलेज में हो जहाँ पर मटेरियल सही से नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि आपको बार बार वो मटेरियल परचेज करना पड़ेगा। सो कॉस्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट टाइम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। रीजनेबल टाइम में सेट भी हो जाए ऐसा भी मटेरियल होना चाहिए। पता चला मैंने 2000 की पट्टी खरीद ली, 2000 का एक इंप्रेशन मटेरियल खरीद लिया, और वो सेट हो रहा है 15 मिनट में, और एक तरफ 4000 का इंप्रेशन मटेरियल है जो कि सेट हो रहा है 3 मिनट में। तो हमें एक नया मटेरियल मिला जो कि 3000 रुपए का है, और वो सेट हो रहा है 6 मिनट में। तो ये अच्छी बात है ना, दिस इज एन कॉस्ट इफेक्टिव मटेरियल। ठीक है, क्लासिफिकेशन पे आते हैं अब। नाउ लेट अस स्टार्ट विद क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ इंप्रेशन मटेरियल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो क्लासिफिकेशन इज रिवर्सिबल। सबसे पहला है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। स्पेलिंग गलत हो गई इस बार। इट इज बेस्ड ऑन सेटिंग। नाउ दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन सेटिंग, ठीक है। बहुत अलग अलग टाइप पे क्लासिफिकेशंस बेस्ड है, ये वाली सेटिंग पे बेस्ड है, ठीक है। सो रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, समझ आ रहा है कि रिवर्सिबल वाला क्या होगा, इट विल रिवर्ट बैक, और इरिवर्सिबल वाला विल नॉट रिवर्ट बैक। इसमें कुछ एग्जांपल्स आते हैं बच्चों। रिवर्सिबल में आता है अगार, रिवर्सिबल में आता है आपका फेवरेट इंप्रेशन कंपाउंड, ठीक है। इरिवर्सिबल के अंदर क्या क्या आते हैं, इरिवर्सिबल में आ गया आपका एल्जिनेट, इरिवर्सिबल में आपके आ गया जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल, इरिवर्सिबल के अंदर आ गया आपका इंप्रेशन प्लास्टर। अच्छा, ये जो मैंने जोई लिखा है ना बच्चों, आपने जोई बोलना नहीं है, इट साउंड्स वेरी अनप्रोफेशनल, ठीक है। जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल बोलना है। पता चला टीचर के पास जाके बोल रहे हैं मैम जोई इंप्रेशन लिया, मैम मैम जोई हमारा सही से सेट नहीं हो रहा है, मैम मैम जोई एक इरिवर्सिबल इंप्रेशन मटेरियल है, मैम मैम जोई हमारे डिपार्टमेंट में खत्म हो गया, मैम। डजंट साउंड गुड। यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, आपका अपना प्रोफेशनलिज्म है। जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल बोलने में कितना सही लगता है ना, वैसे ही बोलो। इंप्रेशन प्लास्टर एंड देन इलास्टोमेरिक मटेरियल्स, ठीक है, ये सब चीजें आती हैं। नाउ रिवर्सिबल वाले में व्हाट आई कैन आल्सो जनरलाइज इज कि रिवर्सिबल वाले में देयर आर फिजिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस। इट्स अ फिजिकल रिएक्शन, बट हियर इट इज अ केमिकल रिएक्शन मोस्टली। So the material which cannot revert back to its original form is said to be irreversible. But if a material can soften upon heating and solidify slightly above body temperature, we can call it a physical change. Your reversible material. ठीक है? Now there is another classification based upon your
मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। सर ग्लिच, एक मिनट, लेट मी चेक। Seems fine, yeah, I guess everything is fine. So coming on to mechanical properties, we have materials that are rigid, we have materials that are elastic. ठीक है, rigid, the ones which are resistant to flexure, यानी कि it fractures when stressed. बच्चों जस्ट इमेजिन चौक, चौक इज अ रिजिड मटेरियल। जैसे ही आपने फोर्स लगाया चक टूट गया, ठीक है, कोई फ्लेक्स भी नहीं करा इसने, थोड़ी भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाई, ठीक है, कि जैसे प्लास्टिक का स्पून होता है, आप उसको जब तोड़ने की कोशिश करते हो थोड़ा सा फ्लेक्स होता है थोड़ी देर फिर टूटता है। सो दैट इज नॉट एज मच रिजिड एज योर चौक इज, ये बात का ध्यान रखना। तो इसमें एग्जांपल्स क्या क्या आते हैं? एग्जांपल्स आ गया आपका जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल, आ गया एग्जांपल इम्प्रेशन प्लास्टर, then there is an example of impression compound, okay, and then you have elastic materials. Now elastic materials में क्या होता है? elastic materials they are flexible, जैसे कि आप मान लो आपका रबर हो गया, रबर फ्लेक्सिबल होता है, इलास्टिक बैंड हो गया फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। इट कैन बी, मैं ना लाइंस जो भी फिलिप्स से डायरेक्टली कोटेड है वो मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपको, सो दैट वी कैन जस्ट एनालाइज देम, कैन बी deformed and return to its original form when stressed, when unstressed। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है कि एक तरफ सर हम डिफॉर्म भी कर रहे हैं, हाँ वही चीज बता रहा हूँ कि हम डिफॉर्म भी कर रहे हैं और रिटर्न भी कर रहे हैं। लेट अस से, गंदे दांत बना रहा हूँ आजकल मैं, इसको सही करना पड़ेगा। आई नीड टू लर्न दिस ग्राफिक टैबलेट थिंग यार, पता नहीं इतना अच्छे से ना हो नहीं पाता है, ठीक है। सो दिस इज योर टूथ, एंड जब इसमें आपने इंप्रेशन मटेरियल डाला तो इंप्रेशन मटेरियल यहां तक गया, यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया, और ये ऐसे करके आया, ठीक है। अब जब आप इसको रिमूव करोगे, when you will be removing it, try to understand कि आपके इंप्रेशन मटेरियल को क्या क्या तरीकों से निकलना पड़ेगा। सो एक तो आपको ये अंडरकट वाला जो एरिया है, ये पूरा एरिया, इसको पहले थोड़ा सा डिफॉर्म होना पड़ेगा टूवर्ड्स राइट, तभी जाकर के ये इस अंडरकट में से इधर से बाहर निकल पाएगा। ऐसे ही इस वाले एरिया को, जो कि अगर मैं ये लाइन बना दूं, ये लाइन बना करके ये जो भी एरिया आ रहा है ना, इसे हम बोलते हैं अंडरकट, ठीक है। इसमें से बाहर निकलने के लिए पहले मटेरियल को थोड़ा सा लेटरली डिस्प्लेस होना पड़ेगा। यहां रिस्क है, क्या रिस्क है, एक मिनट अब दिखेगा, हाँ, तो ये डिस्प्लेस हुए और फिर उसके बाद ये निकले, तो रिस्क क्या है कि ये डिफॉर्म हो रहा है बीच में। अगर ये डिफॉर्म होके वापस अपनी पोजीशन पे नहीं आया, जो कि ये यहाँ पर था, मतलब इसी पोजीशन पे वापस नहीं आया, बाहर निकल गई, तो हमारा इंप्रेशन इनएक्यूरेट हो जाएगा। देयरफॉर यहाँ पे हमें ज़रूरत है एक ऐसे मटेरियल की जो कि इलास्टिक हो, जो कि वापस से रिटर्न करे टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म व्हेन अनस्ट्रेस्ड, ठीक है। नाउ रिजिड मटेरियल्स में जैसे आपका इंप्रेशन प्लास्टर, कंपाउंड, जिंक ऑक्साइड, यूजेनॉल, ये तो आप बड़े आराम से ईडेंचुलस पेशेंट्स में यूज कर सकते हो, यानी कि ऐसे पेशेंट्स जिनके अंदर दांत ही नहीं है, इतने अंडरकट ज्यादा होंगे ही नहीं, और अगर होंगे तो अलर्ट हो जाओ कि ये मटेरियल्स वहां पर यूज नहीं करने। इसीलिए केस हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस है। जब आप फर्स्ट टाइम यू गेट अ पेशेंट, यू मस्ट एनालाइज द पेशेंट प्रॉपर्ली। मान लो ईडेंचुलस पेशेंट है और आपने बोला जी नहीं, खुशहाल सर ने तो बोला था इनसे ले लो, पता चला सिवियर अंडरकट है, वहां पे फंस जाएगा इंप्रेशन। इट विल नॉट बी अ गुड थिंग इन फ्रंट ऑफ अ पेशेंट। पेशेंट के आगे आप जो है कोशिशें कर रहे हो उसे निकालने की, बहुत अजीब लगेगा। सो फ्लेक्सिबल यानी इलास्टिक मटेरियल्स कौन कौन से हैं आपके? अगार, एल्जिनेट एंड इलास्टोमर्स।
ठीक है, ऐसा समझ लो कि जो आपके रिजिड मटेरियल्स होते हैं ना, रिजिड मटेरियल्स जो हैं ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है, ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है। मतलब कि मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। आई विल नॉट एट ऑल एडजस्ट। ये एडजस्ट नहीं करते हैं, ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, ये अडेप्ट ही नहीं करते हैं, और ऐसे पार्टनर्स होते हैं टॉक्सिक। ठीक है, और दूसरी तरफ आते हैं आपके इलास्टिक मटेरियल्स। इलास्टिक मटेरियल्स ये एक मैच्योर रिलेशनशिप है। मैच्योर रिलेशनशिप मतलब कि ये आपके हिसाब से मोल्ड भी करेंगे, पेशेंट के अंडरकट्स के हिसाब से एडजस्ट करेंगे, अपने आप को ढालेंगे, अडेप्ट करेंगे। ये अच्छे पार्टनर्स होते हैं। ठीक है, अब तो समझ आ गया। चलो, अच्छा ये थोड़ा सा पहले आ रहा है ये डाउट, पर मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। बच्चा पूछ रहा है कि एल्जिनेट इलास्टोमर जितना एक्यूरेट क्यों नहीं है। वाई इज एल्जिनेट नॉट गुड एंड इलास्टोमर इज गुड। बच्चे देख, ऐसा समझ ले, बहुत बेसिक समझाना पड़ेगा ना, क्योंकि बाकी बच्चे भी पढ़ रहे हैं तो वो अभी नहीं पहुंचे उस टर्म तक। एल्जिनेट को ना आप अपनी कॉलेज की क्रश मान लो, या फिर स्कूल की क्रश मान लो। आप उससे उस टाइम पे तो मोमेंटरी बहुत तगड़े वाला प्यार होता है, ठीक है, क्रश हो गया, इन्फैचुएशन हो गई। 2 से 3 साल बाद मिलते हो, शेप ही खराब हो गई। मतलब शेप सही, मतलब वो वैसे हो गए कि मतलब काइंड ऑफ ओबीज हो गए, या फिर ध्यान नहीं रखा अपनी फिगर का, या फिर दे जस्ट चेंज ओवर टाइम। ठीक है, दे जस्ट चेंज ओवर टाइम। तो एल्जिनेट की भी यही दिक्कत है, ये ओवर द टाइम चेंज हो जाता है। इलास्टोमर ऐसा नहीं है। इलास्टोमर पता कौन है? वो आपकी लॉन्ग टर्म वाली कमिटमेंट है, लॉन्ग टर्म वाली कमिटमेंट स्टेज द सेम। शेप भी चेंज नहीं हो रही और नेचर भी चेंज नहीं हो रही, और शेप इसलिए चेंज नहीं हो रही क्योंकि वो ऐसे है कि यार सामने वाले के सामने और ना खराब हो जाए, तो अपने आप को मेंटेन करके तो रखना ही है। चलो नेक्स्ट, क्लियर है ना वो वाला डाउट? ठीक है, इलास्टोमेरिक इंप्रेशन मटेरियल्स पे अब हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सो इलास्टोमेरिक इंप्रेशन मटेरियल्स क्या है? दे आर सिंथेटिक पॉलीमर बेस्ड impression materials. They are chemically cross-linked when set, and they are stretchable, यानी अंडरकट से बहुत इजीली निकल आते। केमिकली हमारे पास 3 इलास्टोमर्स ही होते हैं। ठीक है, 3 ही टाइप के इलास्टोमर्स होते हैं। एक होता है पॉली ईथर, एक होता है पॉलीसल्फाइड, और एक होते हैं सिलिकॉन्स। ठीक है, पॉलीईथर, पॉलीसल्फाइड एंड सिलिकॉन्स। पहले इन पे चर्चा कर लेते हैं पॉइंट्स पे। सिंथेटिक है तो ये आर्टिफिशियल होते हैं, ये नेचुरली नहीं मिलते हैं ऐसा, या फिर नेचुरली मिलते भी हैं तो दे रिक्वायर प्रोसेसिंग विच इज डन आर्टिफिशियली, एंड दे आर पॉलीमर बेस्ड। पॉलीमर बेस्ड मतलब कि ये होता है मोनोमर, ये होते हैं पॉलीमर्स। बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स आपस में अटैच होते हैं तो उन्हें पॉलीमर बोलते हैं। अगर एक है तो उसे मोनोमर बोलेंगे, अगर बहुत सारे हैं तो उसे पॉलीमर बोलेंगे। बेस इंप्रेशन में केमिकली क्रॉस लिंक्ड है। इससे क्या मतलब समझे? केमिकली का मतलब हो गया इर्रिवर्सिबल, केमिकली का मतलब हो गया इर्रिवर्सिबल, और क्रॉस लिंक्ड है, आपस में कनेक्टेड है।
ये जो पॉलीमर्स हैं ये भी आपस में कनेक्टेड है ब्रांचेस के थ्रू, एंड जब ये सेट हो जाता है तब ऐसा होता है। तो नॉर्मली ये इतना ज्यादा क्रॉस लिंक नहीं है, पर जब ये सेट हो जाएगा, केमिकली सेट हो जाएगा, तो इसमें क्रॉस लिंकिंग डेवलप हो जाएगी। ये स्ट्रेचेबल है, जो कि बहुत अच्छी बात है ना। हर एक इलास्टोमेरिक इंप्रेशन मटेरियल के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है बेस पेस्ट, एक होता है कैटलिस्ट, ठीक है। और इनमें आती हैं सेवरल कंसिस्टेंसीज। बहुत सारी कंसिस्टेंसीज आती हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा लो, लो, मीडियम, हैवी एंड पट्टी कंसिस्टेंसी। ये सारी पांचों टाइप की कंसिस्टेंसीज आती हैं। ये क्यों मदद करती हैं? ये इस चीज में मदद करती है, याद है आपको जो हमने 7 प्रिंसिपल्स पढ़े थे, उसमें पहला पढ़ा था इट मस्ट बी फ्लूइड इनफ। तो फ्लूइड इनफ का भी ध्यान रखा गया है, एंड दे मस्ट बी विस्कस इनफ का भी ध्यान रखा गया है। इसीलिए इतनी सारी कंसिस्टेंसीज बनाई है, ताकि आप इन्हें अलग अलग जगहों पे यूज कर सको। देखो, इलास्टोमेरिक इंप्रेशन मटेरियल्स के साथ में देयर वाज ऑलवेज वन थिंग एसोसिएटेड, कि हमें ऐसा मटेरियल बनाना है जो कि हर सिचुएशन में यूज हो सके, क्योंकि एक डेंटिस्ट हर टाइप के इंप्रेशन मटेरियल्स रखना पसंद नहीं करते। व्हाट दे प्रेफर इज कि एक टाइप का हो और हमारे पास वो सारे काम बन जाए। सो इलास्टोमर्स केम टू रेस्क्यू। इलास्टोमर्स की प्रॉपर्टीज भी बहुत अच्छी होती हैं, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे, और इसमें सारी कंसिस्टेंसीज भी अवेलेबल है। प्रॉब्लम बस ये है कि थोड़े महंगे होते हैं, पर कंसिस्टेंसी सारी है तो हम सारे काम कर सकते हैं। हम कुछ कंसिस्टेंसी से अच्छे अच्छे दांतों के इंप्रेशन ले सकते हैं, और कुछ कंसिस्टेंसी से हम ई डेंचुलस के भी इंप्रेशन ले सकते हैं, और कुछ को हम दोनों के अंदर यूज कर सकते हैं। हिंट, ठीक है। सो होता क्या है कि देखो, एक्स्ट्रा लो और पट्टी, ये सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन्स के लिए होती हैं। जो हमने 3 टाइप पढ़े ना, हमने क्या पढ़े? 3 टाइप पढ़े। हमने पढ़ा, एक तो पॉलीईथर टाइप होता है, एक पॉलीसल्फाइड होता है, और एक होता है सिलिकॉन्स। इनकी कुछ खास बातें बता देता हूं इन टर्म्स ऑफ कंसिस्टेंसी। ये जो आपका पॉलीसल्फाइड होता है, ये सिर्फ लाइट बॉडी एंड हैवी बॉडी में आता है, ठीक है। सिलिकॉन्स जो होते हैं, इनके अंदर 2 एक्स्ट्रा आते हैं, एक तो एक्स्ट्रा लो एंड पट्टी। ये सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन्स के अंदर आते हैं और कहीं नहीं आते हैं। और एक और चीज की, एक टाइप का सिलिकॉन होता है कंडेंसेशन सिलिकॉन। कंडेंसेशन सिलिकॉन के अंदर हैवी बॉडी आती ही नहीं है, ठीक है। तो पॉलीईथर के अंदर क्या आएगा? लाइट बॉडी और हैवी बॉडी, सॉरी एक्स्ट्रा लो और पट्टी को छोड़ करके सारे आ जाएंगे, ठीक है। लो, मीडियम और हैवी, ये आपके पॉलीईथर के आ जाते हैं। एक और टाइप के मटेरियल्स होते हैं हाइड्रोकोलॉइड्स, वो आगे डिस्कस करूंगा, जिसमें आता है अगार, एल्जिनेट। इनकी खास बात ये है कि दे आर इलास्टिक, बट ये इलास्टोमेरिक नहीं है, ठीक है। ये बात को ध्यान रखेंगे, दे आर इलास्टिक बट दे आर नॉट इलास्टोमेरिक। सो लेट अस स्टार्ट विद द इंप्रेशन मटेरियल्स नाउ इन डिटेल। पॉलीसल्फाइड और हर एक को धीरे धीरे लेंगे। आई विल जस्ट स्टार्ट इट इन द सेकेंड पार्ट।